Good evening, everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are fine. So, today we are going to discuss the next part of the chapter Solutions Chemistry. And in this part, we are going to discuss the concentration terms which were left in the last part, and there are approximately 3 to 4 terms which were left. Okay, so today's first term is, I think it's number 6, and it's mole fraction. It's mole fraction. Okay, suppose we are having a mixture of two components, component A and component B. Okay, so इसको मोल फ्रैक्शन को हम लोग कंपोनेंट्स वाइज डिफाइन करते हैं. कंपोनेंट्स वाइज हम इसको डिफाइन करते हैं. अब अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, इसको हम कंपोनेंट वाइज डिफाइन करते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए ओवर number of moles of A plus number of moles of B. This is N. Don't think it's X. And it is number of moles. Number of moles. Okay. So, ये हम लोग मोल फ्रैक्शन हम कंपोनेंट्स वाइज डिफाइन करते हैं. कंपोनेंट्स के लिए डिफाइन करते हैं. कैसे? जैसे मैं एक कंपोनेंट मैंने उठा लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो उसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी particles. In a similar way, if I want to define it for particle B, so it will be number of moles of B divided by total moles. Okay, suppose mixture में हमारे पास C component भी है, 3 components है, तो it will be NC, number of moles of C also, number of moles of C also. और अगर मैं C के लिए डिफाइन करूंगी for component C, तो number of moles of C divided by total moles, that is of A, B and C. Okay, this is mole fraction. Okay, so how we denote mole fraction? It is denoted by X. ठीक है, अगर मैं कंपोनेंट A के लिए लिख रही हूं, तो what is the mole fraction for component A? It is XA. For component B, it is XB. And for component C, it is XC. Okay, X से हम डिनोट करते हैं एंड कंपोनेंट वाइज करते हैं. फॉर A it is XA, B XB, C XC, and its number of moles of that component divided by total moles. Okay, now what about its units? ऊपर भी मोल्स है, नीचे भी मोल्स है, कैंसल आउट. ठीक है, नो यूनिट्स. ठीक है, इट इज द only concentration term with no units, no dimensions. ठीक है, so you can say that it is unitless and dimensionless quantity. It is unitless and dimensionless quantity. Okay, so I hope you are clear with the first term. It's the ratio of two similar terms, so that's why we cancel it out and we can say that it is unitless and dimensionless term. You should be very much clear about its formula. Yeah, one thing again I left out to tell you, and that was like it's XA means mole fraction of component A plus mole fraction of component B plus mole fraction of component C. 3 components हैं A, B, C. तीनों की mole fraction का sum is equals to 1 always. Suppose you are having a numerical in which they are saying that you have 3 components. आपने क्या करना है? तीनों की mole fraction निकालनी है. Question is this:
एक की निकाल ली, दो की निकाल ली, तीसरे के लिए क्या करोगे, आइडेंटिटी लगा दो. यू कैन यूज फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट आइडेंटिटी लगा दो. ए बी सी की इक्वल्स टू 1 है, तो दोनों की पता कर ली, सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम 1. ओके, सो वहां से आपके पास तीसरी, दो कंपोनेंट्स की है, एक की निकाल लो, 1 में से माइनस कर दो. ओके, सो इट्स द इजी वन. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टर्म. Okay, so next concentration term is mass fraction. Mass fraction. Okay, it's similar to mole fraction that we have discussed. Similar ही है, similar terms हैं दोनों. Okay. सो इसको हम डिनोट करते हैं W से. ये भी कंपोनेंट्स के लिए ही दी जाती है, कंपोनेंट्स वाइज ही हम इसको डिस्कस करते हैं. अगेन वही कंसेप्ट है, एक मिक्सचर है, तीन कंपोनेंट्स हैं A, B एंड C. ठीक है, हाँ जी. सो एक एक कंपोनेंट के लिए डिफाइन करते हैं. लाइक फॉर फर्स्ट कंपोनेंट तो मैं लिखूंगी मास फ्रैक्शन ऑफ A. ठीक है, मास फ्रैक्शन ऑफ A. Sorry, I'm so sorry over here, my bad. It's X. Again we write it as X. ठीक है, जैसे हम मोल फ्रैक्शन को X से लिखते हैं, इन ए सिमिलर में मास फ्रैक्शन को भी हम X से ही लिखेंगे. ओके, सो इट्स XA. मैं कंपोनेंट A के लिए दे रही हूं, तो मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज मास ऑफ कंपोनेंट A ओवर mass of A, weight of B, mass of C. ठीक है, मोल फ्रैक्शन थी तो मोल्स थे. अब मास फ्रैक्शन की बात हो रही है तो इट्स वेट ऑफ A ओवर वेट ऑफ B, वेट ऑफ C एंड वेट ऑफ C. ठीक है, एक A कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज अगेन द वेट ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. इन अ सिमिलर वे we can write it for B component, so it's weight of B over total A plus B plus C. ठीक है, again for C it will be weight of C total weight. ठीक है, if we are talking about moles then you will divide moles, if we are talking about mass you will divide mass. again इसमें ये वाली property valid है, XA plus XB plus XC is equals to 1. अगेन कोई तीन है, दो की निकालो, तीसरी के लिए आइडेंटिटी यूज कर लो. अगेन इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, सो नो यूनिट्स. ठीक है, इट इज unitless and dimensionless quantity. Okay, so again it's the ratio of two similar quantities, so we can say that it's a unitless and dimensionless quantity. weight है, नीचे भी weight है. Okay, so it's a unitless and dimensionless quantity. denote आपको पता है same as मोल फ्रैक्शन, बट मास फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हम वेट्स की बात करेंगे. ओके, वेट से डिवाइड करेंगे. एक चीज हमारे पास पिछले टर्म में भी रह गई थी और यहाँ पे भी रहती है. वहां पे क्या था, मोल फ्रैक्शन में मोल्स ओवर मोल्स थे. ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर वॉल्यूम इन्वॉल्व थी, नो. ओके, सो इट वाज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ठीक है, इन ए सिमिलर वे मास फ्रैक्शन में भी क्या है, वेट ओवर वेट, वेट्स ही है, नो वॉल्यूम इज इन्वॉल्व इन इट, सो अगेन इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी, वॉल्यूम गेट्स चेंज्ड विद द टेम्परेचर, ड्यू टू विच दैट होल टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. बट
in mole fraction as well as in mass fraction. There are moles and mass respectively. ठीक है, मोल फ्रैक्शन में मोल्स है, मास फ्रैक्शन में मास है. ड्यू टू विच दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम. इनमें वॉल्यूम नहीं है, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो कौन कौन सी टर्म्स हैं अब तक जो हमने डिस्कस की हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. ठीक है, उसमें से हमारे पास मोलैलिटी आ जाती है. ठीक है, एंड मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन. ओके, जहां जिस में फॉर्मूले में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, दैट वन इज अवर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. वेट बाय वेट परसेंटेज भी हमारे पास क्या था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ओके, हाँ, जहां वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गई मतलब दैट कंप्लीट टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर लास्ट टर्म दैट इज नॉर्मैलिटी. और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टर्म. ओके, okay, so next term is normality. इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है. इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टर्म क्योंकि इसमें हम थोड़े से फर्दर फॉर्मूलाज जो हैं इन डीप डिस्कस करेंगे. एंड अक्सर इसके जो नेक्स्ट मेन फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं आता, इसके जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसके बेस पे क्वेश्चन आपको आ जाता है. ओके, सो लेट्स define normality. It is number of gram equivalents of solute in 1 liter of solution. Okay, समझिए, फिर फॉर्मूला बनाते हैं. सोल्यूशन 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्वलेंट्स हैं. ओके, सो व्हाट इज नॉर्मैलिटी, दैट इज कि 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्वलेंट्स हैं. नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स in solute, number of gram equivalents of solute in 1 liter of solution. solution बन चुका है, उसका 1 लीटर solution में कितने ग्राम इक्वलेंट्स हैं solute के, that is our normality. okay, so let's form up the formula. normality को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं. so let me start with it. कैपिटल N, number of gram equivalents of solute, ग्राम को मैं GRM लिख रही हूं, इक्वलेंस को EQI लिख रही हूं. नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंस ऑफ solute ओवर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. क्लियर? ओके, अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट इज मेंट बाय ग्राम इक्वलेंस. ग्राम इक्वलेंस क्या होता है मैम? सो ग्राम इक्वलेंस इज, व्हाट इज ग्राम इक्वलेंस? ग्राम इक्वलेंस को देखो मैं कैसे रीराइट कर रही हूं इन अनदर वे. इट्स वेट ओवर इक्विवेलेंट मास. इट्स वेट ओवर इक्विवेलेंट मास. ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स को मैंने ऐसे लिखा है वेट ओवर इक्वलेंट मास, और ये जो नीचे है इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. कुछ नहीं किया, ये मेरा एज इट इज पड़ा है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट को चेंज करके कैसे लिखा है, वेट इन मतलब वेट मतलब मास इन ग्राम्स ओवर इक्वलेंट मास. सिर्फ इतने पोर्शन का मैंने एक छोटा फॉर्मूला बना दिया, वेट ओवर इक्वलेंट मास, और ये चीज ऐसे की ऐसे. अगर ये वॉल्यूम लीटर में ना होती, ml में होती, तो मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करती. ठीक है, लीटर में है तो डायरेक्ट लेनी है, ml में है तो ml लेके 1000 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन का मैंने नीचे एज इट इज लिख दिया, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर है तो एज इट इज.
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैसे लिखा? वेट ओवर इक्विवेलेंट मास. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? ठीक है, वेट तो आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा सल्यूट का कि इतने ग्राम सल्यूट हमने लिया है इन दिस लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो वो वेट आपको यहाँ पे लेना है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है. लाइक एसिड, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सॉल्ट के लिए भी होता है. मेनली हम इन्हीं तीनों का डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड. मैं ऐसे लिख रही हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड. ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर मास ओवर बेसिसिटी, molecular mass over basicity of acid. Okay, so what is equivalent mass of acid? It's the molecular mass over basicity. Basicity क्या होता है? It is the number of H positive ions given by an acid. ठीक है, for example HCl is an acid. ठीक है, H पॉजिटिव. अब पानी में ये कितने आयंस देगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. H पॉजिटिव कितने दिए? एक दिया, तो HCl की बेसिसिटी क्या होगी? 1. सल्फ्यूरिक एसिड है, अनदर एग्जांपल, इट विल बी 2H पॉजिटिव. यही होगा. अब इसने कितने H पॉजिटिव दिए हैं? 2, तो बेसिसिटी फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज 2. ओके, सो दिस इज मेंट बाय बेसिसिटी कि एक एसिड पानी में कितने H पॉजिटिव देगा. 1 देगा तो उसकी बेसिसिटी 1 है, 2 देगा तो उसकी बेसिसिटी 2 है, 3 देगा तो उसकी बेसिसिटी 3 है. ओके, सो एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास ओवर इट्स बेसिसिटी. ठीक है, तो अगर आपको मानो क्वेश्चन में कोई एसिड दिया है तो क्या करोगे? वेट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, वॉल्यूम विल बी गिवन टू यू, ml में तो ml इंटू 1000 कर दो, लीटर है तो लीटर को सीधा लिख दो, नो नीड ऑफ 1000. और इक्विवेलेंट मास के लिए आपने क्या करना है? एसिड दिया है तो मॉलिक्यूलर मास ओवर इट्स बेसिसिटी. बेसिसिटी इज जस्ट द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस. ओके, अगर मैं यहीं पर चेंजेस कर दूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. ठीक है, बेस के लिए क्या होएगा? इट विल बी मॉलिक्यूलर मास over acidity. Now what is meant by acidity? It's again number of OH negative ions given by a base. ठीक है, अब एक बेस को पानी में डालोगे तो वो कितने OH पॉजिटिव आयंस देगा? दैट इज द एसिडिटी ऑफ अ बेस. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी करोगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस आ जाएगा. यहां पुट करोगे, वेट गिवन होएगा, वॉल्यूम गिवन होएगी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला यू हैव टू लर्न स्पेसिफिकली फॉर एसिड एंड बेस. बस मॉलिक्यूलर मास सेम है. एसिड के लिए कि वो कितने H पॉजिटिव दे रहा है उससे डिवाइड करना है, बेस के लिए वो कितने OH नेगेटिव दे रहा है उससे आपको डिवाइड करना है. Okay, so now next formula that I'm going to discuss here is for the salt. Last one is for the salt. Okay, I'll discuss it over here only. Equivalent mass of salt. ठीक है, it's the molecular mass over total positive valency on metal atom. मेटल एटम के ऊपर टोटल कितनी पॉजिटिव वैलेंसी है? ओके,
सॉल्ट में सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट ओवर उसी सॉल्ट में मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव वैलेंसी है, चार्ज है, दैट विल बी इक्विवेलेंट मास फॉर अ सॉल्ट. बाकी सब चीजें गिवन होंगी. मेनली नॉर्मेलिटी के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये एज इट इज, ये इसको सिर्फ मैंने रीराइट किया है एज वेट ओवर इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं है, इट्स डिफरेंट फॉर एन एसिड, बेस एंड फॉर अ सॉल्ट. एसिड बेस के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ H positive और number of OH negative ions given in water respectively. Okay, and for salt it's a little bit different, molecular mass over total positive charge on metal atom. ठीक है. Now it's over for normality. Over here we have definition, formula for numericals for acid, base, salt. Yeah, now I'm going to discuss a little bit relations for the normality, and then we will end this I think lecture or this part, or for the our concentration terms will be completed after that. So let's discuss the relations now. Okay, so now let's discuss some relations. Now suppose in a question they have given you molarity, and you know which is acid over there, and they have said you to find out the normality. अब उन्होंने आपको molarity भी दे दी, you know about acid also. ठीक है, तो आप अगर नॉर्मेलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने लग जाओगे तो मोलैरिटी देने का फिर क्या मतलब हुआ. मोलैरिटी क्यों दी? कोई भी चीज वो क्वेश्चन में देते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू यूज इट ओवर देयर. कई बार वो एज अ ट्रैप एक्ट करता है कि वो नहीं यूज होता क्वेश्चन में एंड अननेसेसरली गिवन होता है. बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर उन्होंने एक अच्छी टर्म दी है आपको, दैट मीन्स there is a reason behind, purpose behind giving that term, and you have to use that term while solving your problem. Okay, so relation for this is ki like you have to find the normality of an acid, so it's equals to, you are given with molarity, लिख दो molarity into acid की क्या होती है, basicity. You know about what is meant by basicity. Basicity is the number of H positive ions given by an acid in a aqueous solution. तो molarity दी है, acid पता है तो उसकी basicity निकाल सकते हो, multiply करो, you will get the normality. Normality for base क्या आएगी, molarity into acidity. ये बहुत important relation है. सिंपल यूटी में आपको 1 मार्क क्वेश्चन आपके लिए तैयार पड़ा है यहाँ पे. ठीक है, अगेन यू नो अबाउट द बेस, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एसिडिटी, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद मोलैरिटी एंड यू विल कम अप विद द नॉर्मेलिटी. नेक्स्ट रिलेशनशिप इज कि अगर नॉर्मेलिटी की बात हो रही है, ठीक है, तो उस केस में चाहे डाइल्यूशन फॉर्मूला है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, चाहे डाइल्यूशन फॉर्मूला है चाहे रिएक्शन फॉर्मूला है, एंड चाहे डाइल्यूशन फॉर्मूला है चाहे रिएक्शन फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी के केस में वो क्या रहेगा, N1V1 इक्वल्स टू N2V2. दो सॉल्यूशंस हैं विद डिफरेंट नॉर्मेलिटीज, डिफरेंट वॉल्यूम. कोई 3 पैरामीटर्स गिवन होंगे, चौथा फाइंड आउट आपको करना होगा. एनी 3 विल बी गिवन. नॉर्मेलिटी की बात कर रही हूं, वहां पे चाहे डाइल्यूशन है चाहे रिएक्शन है, इन बोथ द केसेस फॉर्मूला विल बी सेम. N1V1 equals to N2V2, where N1 and 2 are the normalities, V1, V2 are the volumes. But for molarity अगर मैं बात करूं, I hope it's visible to you. मोलैरिटी अगर मैं बात करूं डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन के केस में इट इज M1V1 इक्वल्स टू M2V2. डाइल्यूशन के केस में वैसा ही है, मोलैरिटी में M1 M2 यूज होएगा वेयर देयर आर मोलैरिटीज इन V1 V2 वॉल्यूम्स. बट
मोलैरिटी के केस में रिएक्शन फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होएगा. It is N1 N2. Now what is N1? Don't think these are moles. Actually एक balanced reaction में balanced reaction जो coefficients होते हैं ये N1 N2 वो हैं stoichiometric coefficients. Okay, so normality में dilution reaction formula same रहेगा. फॉर मोलैरिटी डाइल्यूशन फॉर्मूला ये है, रिएक्शन फॉर्मूला ये है, बस हल्का सा फर्क है. यू हैव टू डिवाइड हेयर विद द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. ओके, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बैलेंस्ड रिएक्शन से आते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज कंसंट्रेशन टर्म्स वेरी वेल. नाउ वी आर ओवर विद इट. In the next part, we will going to start with the next topic, and till then, stay tuned, revise your lectures, and if you have any doubt, you can ask me in the comment section, and please don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you.